رضیہ بی بی کو بھی تھوڑی ہوش آئی اور اپنی بیٹی بلقیس کی طرح رضیہ بی بی بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرتی دوبارہ گھر سے باہر نکل گئیں تاکہ اس کے بچوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ ان کی امی گھر واپس آ کر ان دونوں بہن بھائی کو دیکھ چکے ہیں۔ ادھر جو ہی بلقیس اپنا حلیہ ٹھیک کرنے میں مصروف ہوئی تو زاہد اٹھ کر باتھ روم میں نہانے کے لیے چلا گیا۔ زاہد کے باتھ روم میں جاتے ہی بلقیس نے کمرے میں بکھری ہوئی چیزوں کو جلدی سے سمیٹا اور کمرے سے باہر چلی آئی۔ بلقیس اپنے کمرے سے تیزی سے نکلی تو کچن کی طرف جاتے ہوئے بلقیس کا پاؤں فرش پر گرے ہوئے اپنی امی کے کنویں کے پانی پر آن پڑا۔ یہ تو گھر کا فرش ویسے ہی کافی چکنا تھا، اوپر سے پانی گرنے کی وجہ سے فرش پہلے سے بھی کافی سلپری ہو گیا تھا، اس لیے جو ہی بلقیس کا پاؤں فرش کے اس حصے پر پڑا جدھر اس کی امی کھڑی تھیں تو بلقیس کا پاؤں ایک دم سے سلپ ہوا، جس وجہ سے بلقیس اپنا وزن کھو بیٹھی اور ایک دم سے فرش پر گر پڑی۔ گھر میں تو ہم دونوں بہن بھائی کے سوا کوئی نہیں، تو پھر یہاں پانی کس نے گرایا ہے؟ جو ہی بلقیس فرش پر گری تو اسے خیال آیا بلقیس کو فرش پر اچانک گرنے کے باوجود کوئی چوٹ نہیں آئی تھی، اس لیے وہ دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ جو ہی بلقیس نے کچن کی طرف جانے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھایا تو بلقیس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں پر کوئی گاڑی چیز لگی ہے، جو کہ اب اس کے کچن کی طرف جانے کے دوران فرش سے لگ کر چپ چپ کر رہی ہے۔ بلقیس نے ایک دم سے اپنا پاؤں اوپر کرتے ہوئے اپنے پاؤں پر لگے ہوئے مادے کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنے کی کوشش کی تو کچھ مادہ بلقیس کے ہاتھ پر بھی لگ گیا۔ یہ پانی تو نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ بلقیس نے بے خیالی میں اپنا ہاتھ اپنی ناک کے قریب کیا اور اپنے ہاتھ پر لگے اپنے پانی نما مادے کو سونگھنے کی کوشش کی۔ جو ہی بلقیس نے اپنے ہاتھ کو اپنے ناک کے نزدیک کیا تو بلقیس کو اپنے ہاتھ پر لگے ہوئے اس مادے سے ایک مخصوص خوشبو آئی۔ بلقیس چونکہ نیلوفر کے ساتھ کافی دفعہ میچ کھیل چکی تھی، اس لیے وہ اس خوشبو کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ یہ تو اس پانی کی خوشبو ہے۔ جو ہی بلقیس نے سونگھا تو بلقیس ایک دم سے حیرت زدہ ہو کر سوچنے لگی، وہ جو چیخ میں نے سنی تھی کہیں وہ امی کی تو نہیں تھی کیا؟ امی ہم دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ کر کہیں اپنے ہاتھ سے اپنی زمین پر ہل تو نہیں چلا رہی تھی؟ بلقیس کے ذہن میں خیال آیا، مگر وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی امی کا خیال اپنے ذہن میں مکمل نہ کر سکی۔ نہیں بھلا امی کیوں اپنے بچوں کو یوں چھپ چھپ کر دیکھیں گی؟ میں امی کے متعلق کیا برا خیال اپنے ذہن میں لانے لگی ہوں؟ دوسرے لمحے بلقیس نے امی کے متعلق آنے والے اس گندے خیال کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور کچن میں جا کر ہاتھ کو پانی سے دھونے لگی۔ کچھ ٹائم باہر گزارنے کے بعد رضیہ بھی دوبارہ اپنے گھر واپس آئی۔ جو ہی رضیہ بی بی کچن میں کام کرتی ہوئی بلقیس کے سامنے ہوئی تو بلقیس نے نہ جانے کیوں آج اپنی امی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی کوشش کی۔ شاید بلقیس اپنی امی رضیہ بی بی کی آنکھوں میں جھانک کر یہ دیکھنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی کہ کہیں اس کے کانوں میں پڑنے والے چیخ واقعی اس کی اپنی امی رضیہ بی بی کی تو نہیں تھی، یا شاید بلقیس سے جاننے کی کوشش میں تھی کہ کہیں اس کی امی رضیہ بی بی تو چھپ چھپ کر اپنے بیٹے اور بیٹی کو دیکھتی رہی ہیں۔ مگر رضیہ بی بی آخرکار بلقیس کی ماں تھی، اس لیے رضیہ بی بی نے اپنی کسی بات یا حرکت سے بلقیس کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ زاہد اور بلقیس کا منظر آج ایک بار پھر دیکھ کر اپنی زمین پر ہل چلایا تھا۔ اس لیے گھر واپس آتے ہی رضیہ بی بی کچن میں اپنی بیٹی بلقیس کا ہاتھ ایسے بچانے لگی جیسے اسے کچھ علم ہی نہیں کہ اس کے گھر غیر موجودگی میں اس کی بیٹی اور بیٹا گھر میں کیا گل کھلاتے رہے ہیں۔ نہیں، مجھے اپنی امی پر یوں شک نہیں کرنا چاہیے۔ رضیہ بی بی کے چہرے پر ایک سکون اور اطمینان دیکھ کر بلقیس نے امی کے متعلق اپنے ذہن میں آنے والے شک کو دور کیا۔ مگر ہو نہ ہو آج کس انسان نے ہم دونوں کو دیکھا ضرور ہے، لیکن وہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ بلقیس نے اپنی امی کے متعلق اپنے ذہن میں آنے والے خیال کو تو جھٹک دیا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ بلقیس کو تیسرے فرد کی اپنے گھر میں موجودگی کا پورا یقین ہونے لگا تھا۔
इस तरह एक हफ्ता और गुजर गया और इस हफ्ते के दौरान घर के इन तीनों अफराद की तलब मजीद बढ़ती जा रही थी। एक हफ्ते बाद एक दिन जाहिद हस्बे मामूल सुबह सवेरे नहाने के लिए बाथरूम गया तो नहाने के दौरान अपनी अम्मी और बहन को जहन में लाते हुए तैयार होने लगा। इधर दूसरी तरफ रजिया बीबी भी हस्बे मामूल से पहले उठकर किचन में आई और अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी। क्यों ना मैं जाहिद को इसके कमरे में ही चाय दे आऊं। चूल्हे पर पड़ी चाय जो ही बनकर तैयार हुई तो रजिया बीबी ने सोचा। इसके साथ ही रजिया बीबी ने चाय को एक कप में डाला और फिर अपने हाथ में थामे अपने बेटे जाहिद के कमरे की तरफ चल पड़ी। जो ही रजिया बीबी ने अपने बेटे जाहिद के कमरे के दरवाजे को हाथ लगाया तो जाहिद के कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक न होने की वजह से खुलता चला गया। लगता है जाहिद रात को अपने दरवाजे की कुंडी लगाकर नहीं सोया। अपने बेटे के दरवाजे को यूं खुला पाकर रजिया बीबी ने सोचा। रजिया बीबी दरवाजा खोलकर जाहिद के कमरे में दाखिल हुई तो इसे जाहिद तो अपने बिस्तर पर नजर नहीं आया, मगर रजिया बीबी को अपने कान में बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। लगता है कि जाहिद बाथरूम में नहा रहा है। जाहिद के बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनकर रजिया बीबी समझ गई। रजिया बीबी ने चाय का कप जाहिद के बिस्तर के साइड टेबल पर रखा और मुड़कर किचन में जाने लगी। बिल्किस तो अभी सो रही है तो क्यों ना सुबह सुबह मैं फिर से अपने बेटे का दीदार कर लूं। रजिया बीबी जो ही किचन में जाने के लिए जाहिद के बाथरूम के दरवाजे के सामने से गुजरी तो रजिया बीबी के जहन में ख्याल आया। अपने बेटे का ख्याल आते ही रजिया बीबी तैयार होने लगी और इसके साथ साथ ही रजिया बीबी ने एकदम नीचे होकर दरवाजे के की होल से आंख लगाकर अंदर देखा। रजिया बीबी की आंख ने जो ही अंदर का मंजर देखा तो अंदर का मंजर देखकर रजिया बीबी की सांसें इसके गले में अटकने लगी। रजिया बीबी की सांस इसके गले में अटकने की वजह से रजिया बीबी तेज तेज सांस लेने लगी। रजिया बीबी ने देखा कि अंदर इसका बेटा जाहिद इस वक्त छोटू को नहला रहा है और इसके साथ खेल रहा है। जो ही रजिया बीबी ने अपने बेटे जाहिद को यूं खेलते देखा तो रजिया बीबी का हाथ एक दफा फिर अपनी जमीन पर हल चलाने लगा। काश मेरा बेटा मुझे भी एक दिन इसके साथ खेलने का मौका दे। अपने बेटे जाहिद को हसरत बड़ी निगाहों से देखते हुए रजिया बीबी का दिल कर रहा था कि वो अपना हाथ बढ़ाकर छोटू को गर्दन से पकड़ ले, मगर रजिया बीबी जानती थी कि ये इसकी एक ऐसी ख्वाहिश है जो शायद कि पूरी ना हो सके। इसलिए अपनी तमन्ना को अपने दिल में ही मार कर रजिया बीबी भी खामोशी से अपने बेटे को देखती रही और साथ साथ अपना काम करती रही। इधर इस दिन जाहिद को चूंकि आज किसी केस के सिलसिले में कोर्ट में हाजिरी देना थी, इसलिए इसके पास सुबह सुबह छोटू से खेलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। इसलिए जाहिद ने जल्दी से अपना शॉवर बंद किया और अपने आप को साफ करने लगा। रजिया बीबी समझ गई कि अब जाहिद किसी भी वक्त बाहर निकल सकता है, इसलिए रजिया बीबी जल्दी से पलटी और कमरे से बाहर निकलने लगी। मगर इस जल्दी के दौरान रजिया बीबी जाहिद के कमरे का दरवाजा खुला छोड़ गई। जो ही रजिया बीबी जाहिद के कमरे से बाहर आई तो इसे अपने पीछे अपने बेटे जाहिद के बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। कहीं जाहिद ने मेरी चोरी पकड़ न ली हो। रजिया बीबी के जहन में न जाने क्यों ये डर बैठ गया और इस डर के मारे इसे पता नहीं क्या सूझा कि रजिया बीबी जाहिद के कमरे के सामने बने हुए एक छोटे से कमरे नुमा स्टोर में चली गई। स्टोर में जाते ही रजिया बीबी की नजर सामने बनी हुई अलमारी पर पड़ी। इस अलमारी में कपड़े गुंजाइश से ज्यादा होने की वजह से अलमारी का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ था। रजिया बीबी को जल्दी में कुछ और न सूझा तो वो कपड़े की अलमारी के खुले हुए दरवाजे को जोर से बंद करने लगी। इधर बाथरूम से बाहर निकलते ही जाहिद ने देखा कि इसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। ये मेरे कमरे का दरवाजा किसने खोल दिया है? अपने कमरे के खुले दरवाजे को देखकर जाहिद ने सोचा। इसके साथ ही जाहिद की नजर अपने बिस्तर के साइड टेबल पर पड़े हुए चाय के कप पर पड़ी। अच्छा लगता है कि अम्मी या बिल्किस चाय का कप रखने के बाद दरवाजा खुला छोड़ गई हैं।
साइड टेबल पर रखे हुए कप को देखते ही जाहिद ने दोबारा सोचा। इसके साथ ही जाहिद अपनी अलमारी की तरफ गया और अलमारी से अपना एक सूट निकालकर पहन लिया। फिर जाहिद ने टेबल पर पड़ा हुआ चाय का कप अपने हाथ में उठाया तो इसकी नजर अपने कमरे के खुले हुए दरवाजे से सामने के कमरे में जाकर अपनी अम्मी रजिया बीबी पर पड़ी, जो इस वक्त कपड़ों वाली अलमारी के सामने खड़ी होकर इस अलमारी को बंद करने की कोशिश कर रही थी। अलमारी को बंद करने के दौरान रजिया बीबी का मुंह अलमारी की तरफ था, जबकि दूसरा हिस्सा जाहिद की तरफ था। स्टोर की अलमारी को बंद करने की गर्ज से रजिया बीबी को चूंकि अलमारी के दरवाजे पर अपना पूरा जोर लगाना पड़ा था, इस अमल के दौरान रजिया बीबी आगे को झुकी हुई थी, जिसकी वजह से पिछला हिस्सा बाहर निकला हुआ लगता है। अम्मी से शायद अलमारी बंद नहीं हो पा रही, इसलिए वो अलमारी को बंद करने के लिए वो अपना पूरा जोर लगा रही हैं। अपनी अम्मी को जोर लगाकर अपने कपड़ों वाली अलमारी को बंद करते हुए देखकर जाहिद को अंदाजा हुआ, मुझे जाकर अपनी अम्मी की मदद करनी चाहिए। जाहिद के दिल में ख्याल आया, रुक जा इधर और इस नजारे का लुत्फ उठा यार। दूसरे लम्हे छोटू ने इसके दिमाग में ख्याल डाला और जाहिद इसके मान को देखने लगा। अपनी सगी बहन का तो काम कर चुके हो, अब अपनी अम्मी को गुनाह भरी नजरों से देख रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर बिल्किस को इस बात का पता चल गया तो वो क्या सोचेगी। जाहिद के दिल में ख्याल ने जन्म लिया, लेकिन चाहने के बावजूद अपने जहन से रजिया बीबी का खुमार नहीं उतर रहा था, इसलिए वो देखने लगा। रजिया बीबी को अपने ऊपर अपनी बेटी की नजरें महसूस हो रही थीं। रजिया बीबी बेशक जाहिद की माँ थी, मगर इसके साथ साथ रजिया आखिरकार एक औरत भी थी और हर औरत की तरह रजिया बीबी भी मर्दों को तड़पाने का खेल खिलाने का फन अच्छी तरह जानती थी। वो जान देखकर पहाड़ों को हिलाने लगी, जिसको देखकर इसके बेटे जाहिद की रजिया बीबी के लिए दीवानगी बढ़ती जा रही थी। इधर जिस वक्त रजिया बीबी अलमारी को बंद करने में मसरूफ थी, तो दूसरी तरफ इसी वक्त बिल्किस किचन से निकलकर अपने भाई जाहिद के कमरे की तरफ आई। जब बिल्किस आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई अपने भाई के कमरे की खिड़की के करीब पहुंची, तो इसकी नजर अपने भाई जाहिद पर पड़ी, जो इस वक्त चाय का कप अपने हाथ में पकड़े हुए हर बात से बेखबर रजिया बीबी को देखने में मसरूफ था, जिसकी वजह से छोटू भी तैयार हो चुका था। बिल्किस कमरे के बाहर जिस जगह खड़ी थी, वहां से वो अपने भाई जाहिद के कमरे और इसके सामने वाले स्टोर को देख सकती थी, मगर जाहिद के कमरे या स्टोर में मौजूद रजिया बीबी को बिल्किस के बरामदे में मौजूदगी का इल्म नहीं हो सकता था। ये सुबह सुबह चाय पीते वक्त भाई क्या कर रहे हैं। जो ही कमरे के बाहर से बिल्किस की नजर अपने भाई पर पड़ी, तो इस अपने भाई को यूं देखकर हैरत हुई। जाहिद को अपनी बहन बिल्किस के कमरे के बाहर मौजूदगी का एहसास न हुआ और वो यूं ही खड़े खड़े आंखें खोल खोल कर रजिया बीबी को देखने में मसरूफ रहा। दूसरी तरफ बिल्किस ने अपने भाई के चेहरे पर अपनी निगाह डाली, तो इसने अपने शौहर को अपने कमरे से बाहर देखते हुए पाया। देखो तो सही, मेरा भाई आज किसको देखकर इतना मचल रहा है। बिल्किस के दिल में ख्याल आया और इसकी नजर जो ही अपने भाई की नजरों का पीछा करती हुई दूसरे कमरे की तरफ गई, तो जाहिद की तरह बिल्किस की नजर भी दूसरे कमरे में मौजूद रजिया बीबी पर पड़ी, जो इस वक्त अपनी अलमारी खोलकर इसमें बिखरे हुए कपड़ों को समेटने में मसरूफ थीं। अपनी अम्मी को दूसरे कमरे में मौजूद पाकर बिल्किस का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। उफ, ये कैसे हो सकता है। मेरा शौहर मेरी सास और अपनी सगी माँ को देखकर कैसे मचल सकता है। बिल्किस ने अपनी नजरें वापस रजिया बीबी से अपने भाई की तरफ मुड़ी। बिल्किस की नजरें जो ही दोबारा अपने भाई पर पड़ी, तो अपने भाई जाहिद को देखकर बिल्किस को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो देख रही है वो कोई ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत है। इसी दौरान जाहिद अपने चेकअप टेबल पर रखकर अपनी अलमारी से अपनी शर्ट निकालने लगा, तो बिल्किस इसकी नजर दोबारा स्टोर में खड़ी हुई रजिया बीबी की तरफ गई। इधर रजिया बीबी भी अपनी किनखियों से अपने बेटे जाहिद की सब हरकतों का जायजा ले रही थी। अपने बेटे को देखकर रजिया बीबी पहले तैयार हो चुकी थी। अब अपने बेटे को यूं भूखी नजरों से अपना दीदार करते देखकर रजिया बीबी दोबारा तैयार हो रही थी। इससे जाहिद का ध्यान रजिया बीबी से हटा, तो स्टोर में मौजूद रजिया बीबी एकदम से
تھوڑا سا واپس مڑی اور اس نے زاہد کے کمرے کی طرف اپنی نظر دوڑائی۔ اس کے ساتھ رضیہ بی بی نے اپنا ایک ہاتھ نیچے لے جا کر اپنی زمین پر ہل چلانا شروع کر دیا اور اس کے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکلی۔ اوف، یہ آواز تو میں نے کچھ دن پہلے زاہد بھائی کے ساتھ میچ کھیلتے ہوئے سنی تھی۔ اپنی امی کو یوں اپنے بیٹے زاہد کے کمرے کی طرف دیکھ کر، اپنی زمین پر ہل چلاتا دیکھ کر بلقیس نے سوچا اور اپنی امی کی اس حرکت پر بلقیس حیرت زدہ ہو گئی۔ بلقیس تو کبھی اپنے خواب میں بھی اپنی امی سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے سامنے رضیہ بی بی کو دیکھ کر بلقیس کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امی ہی تھیں جو اس دن مجھے اور زاہد کو میچ کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ بلقیس کے ذہن میں دوسرا خیال آیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔